Assalamualaikum. My name is Dr. Samar Ramzan, and today let's learn about the management of pain. First of all, I would like to go into the overview and why it is important to learn about the management of pain, and then briefly I will talk about types of pain and then pharmacological agents available for the treatment of pain. When to choose which drug is all important when working in the emergency or whatever condition, and then severity of pain assessment. Okay, so first things first, and why it is important to learn about the management of pain. We all know that whenever someone presents in emergency, out of 100, almost 60 to 70 or sometimes 80% patients are coming to you because of pain. Either it is headache, backache, abdominal pain, chest pain, leg pain, and whatever type of pain, it is the biggest reason that brings patient to a doctor. So mastering the art of pain management is very important for any doctor working at any place, at any institution or whatever setting they are. Whenever present, try to make sure what is the underlying cause of the pain, because mostly the agents are being used to numb the pain or just to eliminate for the time being. But until you find the underlying cause of the pain, you will not be able to exactly eradicate the pain. You will not be able to make the patient comfortable in the coming days. For example, when someone is having pain due to a trauma or some road traffic accident, then immobilizing the part of that body is also the part of pain management. And also, till the fracture heals, the pain will not go away, and most of your medications will be just to numb the pain, or you can say make the pain tolerable. Is the pain good thing? Some of the clinicians think that the pain is often the warning sign for the underlying disease. तो जो दर्द है वो हर सिनेरियो में जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है. समटाइम्स ये अंडरलाइंग जो डिजीज होती हैं उनका एक वार्निंग साइन भी होता है. Broadly speaking, pains can be neurogenic in origin. Sometimes the reason for pain is the neurological, and sometimes the pain is due to smooth muscle spasms like GI contractions or any hollow organs, and sometimes it is due to musculoskeletal damage or musculoskeletal reasons. So in different types of pains, the drugs can be different. So knowing this can help us in selecting a good drug. The examples for neurogenic pains can be sometime post-traumatic headache due to neurological injury, and the example for smooth muscle pains is sometimes GI contractions as a part of gastroenteritis. Example of musculoskeletal pains is often due to road traffic accidents leading to fractures. अच्छा जी, अब ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स. जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको कोई ना कोई ड्रग ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी. सिलेक्शन ऑफ एजेंट्स जो है सम हाउ रिलेटेड टू है सेवेरिटी ऑफ द पेन के साथ. तो जो लास्ट पोर्शन कवर करना था उससे पहले कवर कर लेते हैं. सो इनडायरेक्टली आप कैसे असेस कर सकते हैं, किसी से कैसे पूछा जाए कि आपको कितनी दर्द हो रही है. तो जो भी आपके पास दर्द की वजह से आएगा वो यही कहेगा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है. बट देर आर सम वेज टू मेक एन एस्टिमेट कि ये पेन सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड इंटेंसिटी की है. द वन वे इज़ टू आस्क क्या आप इस दर्द के साथ अपना रूटीन का रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम कर लेते हैं. So can you continue your routine activities with this pain? So if the answer is yes, then the pain can be mild. If they cannot continue the routine activities and they have to avoid their daily activities or the simple activities, the pain can be severe in nature. Other way to make an estimate is are you able to sleep with this pain. तो क्या आप इस दर्द के साथ सो सकते हैं. तो ये भी एक तरीका है, इससे आपको पता चल जाएगा कि पेन सीवियर है या माइल्ड या मॉडरेट है. और द अदर वे इज़ के अगर कोई फीमेल है तो आप उससे इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि क्या ये दर्द आपकी, अगर वो
फीमेल किसी प्रेगनेंसी से गुजरी है, तो कुछ लोग इस तरह से पूछना पसंद करते हैं कि क्या ये दर्द जो है उस दर्द के कितनी नज़दीक है जब आपके बच्चे की पैदाइश हुई थी। सो these are the indirect ways to make an assessment about the severity of the pain। इसके अलावा जो दूसरे कुछ तरीके वो ये भी हैं कि आप मरीज़ से 0 to 100 या 0 to 1 के स्केल पर उनकी पेन के बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट होता है हर पेशेंट के लिए डिफरेंटली। जहाँ बात पेन की सेवेरिटी के बारे में हो रही है, तो दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फिनोमेना। ए डिफरेंट पर्सन कैन feel differently. For example, the person who is not went through any pain at all will feel a little pain as high as possible। जैसे कि बहुत से मज़दूर लोग जो हैं वो अक्सर जो है वो डिफरेंट पेन से गुजरते रहते हैं, तो उनके लिए एक जो पेन की इंटेंसिटी है वो हाई वाली भी माइल्ड ही हो सकता है उन्हें लगे। तो patient to patient management will differ ultimately। Now, what are the common pharmacological agents available for the management of pain? And we all have heard about the word NSAIDs and then aspirin and then Panadol और पैरासीटामोल। हम बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक तकरीबन हर इंसान कोई ना कोई दवाई इनमें से इस्तेमाल कर चुका होता है किसी न किसी वजह से। वो सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, बैक एक है या बुखार है, वट। तो ये ड्रग्स जो हैं ये बड़ी कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। इसके अलावा जो हैं बाकी फिर आपके पास ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स आ जाती हैं। ये ड्रग्स जो हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको यूज़ करनी पड़ जाती हैं। तो जब आपके पास बात करें एनसेड्स की, तो इसमें आपके पास सब टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें अक्सर डिबेट होती है कोक्स 2 सेलेक्टिव ड्रग्स के बारे में और सिंपल जो नॉन कोक्स 2 सेलेक्टिव ड्रग्स के बारे में। तो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द कोक्स 2 selectivity, because we know that NSAIDs are pathognomically associated with the development of peptic ulcer disease that can lead to worse outcomes leading to peptic ulcer, and that ulcer can bleed as well। COX-2 selective drugs have their advantages because they lead to lesser incidences of peptic ulcer disease, but at the same time they are a little bit expensive as well। Aspirin do play a role in the management of pain, but not as a first line, but can be dose dependent। इसकी डिफरेंट डोजेस के ऊपर इसके डिफरेंट एक्शंस होते हैं, जो कि सिंपल पेन और सिंपल इन्फ्लेमेशन और एंटी स्कीमिक रोल भी है इसका। और पेनाडोल को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है फीवर के लिए यूज़ किया जाता है, बट इट डू एक्ट एज ए पेन किलर एज वेल। एंड देन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स जो हैं उनमें आपके पास माइल्ड ओपियाइड एनाल्जेसिक और इसके अलावा जो पोटेंट एनाल्जेसिक्स हैं ओपियाइड के, उनके एनालॉग्स भी मौजूद हैं। तो when using opioid analgesics, what are the things to worry about? Because they have addiction potential, so they should not be used in a longer durations। So give them for 5 days and then do use if they are required। And long term use is often associated with addiction potential। they do have the tolerance issue के वक्त के साथ साथ इनका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब आपको पता है कि NSAID जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, एस्प्रिन अवेलेबल है, पैनाडोल, ओपियाइड जैसी हैं, तो कब कहाँ कौन सी ड्रग यूज़ करें वाइजली, इसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। इन क्रोनिक पेन्स WHO हैव गिवन ए मेथड फॉर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द dose/agents। WHO पेन लैडर और पेन मैनेजमेंट लैडर जो है वो एक तरीका है जिसमें वो कहते हैं कि फर्स्ट आप जो है सबसे पहले एक NSAID यूज़ करें। अगर आपकी पेन मैनेज हो जाए तो वेल एंड गुड,
अदरवाइज़ फिर आप क्या करें कि एनसेड के साथ जो है वो एक जो है वो माइल्ड ओपियाइड एजेंट ऐड कर दें। अगर उससे भी पेन ठीक ना हो तो देन यू कैन गो फॉर ए पोटेंट ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग। तो पोटेंट ओपियाइड की जो एग्जांपल्स हैं उसमें मॉर्फिन जो है वो सबसे टॉप पर है, लेकिन हमारे मुल्क में मॉर्फिन अक्सर नहीं मिलती। तो इसके जो अल्टरनेटिव अक्सर मिलते हैं वो किंग्स मैक्सलोन के नाम से हम ड्रग यूज़ करते हैं, जिसे नेलब्यूफिन कहते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा इसके अलावा जो तरीका है वो ये भी है कि डिफरेंट डिजीज़ में, जैसे कैंसर पेन्स हैं जिसमें आपके पास बेड सेल कार्सिनोमा या फिर पेटोबिलरी ऑर्गन्स की जितने भी कैंसर्स मेलिग्नेंसी हैं उनमें अक्सर पेन की कंप्लेन पेशेंट्स को होती है। तो वहाँ पे फिर आप ओरल फार्म में भी जो है वो माइल्ड ओपियाइड्स यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सी ड्रग्स हैं। मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो कि रूटीनली बाय नेम ट्रेड नेम अवेलेबल है उनकी एग्जांपल्स भी बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो हियर वी हैव कॉमन ट्रेड नेम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ NSAID ड्रग्स। सो वी ऑफन हैव हर्ड द नेम ऑफ ड्रग वोल्ट्राल एंड डिक्लोरान जो हैं ये आपके पास ड्रग्स हैं कॉमनली जो है 50 mg 25 mg और 75 mg की स्ट्रेंथ में आती हैं। इनको आप जो है वो 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स जो है वो दिन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नेम से ये अवेलेबल हैं, बट दीज 2 ड्रग्स आर फेमसली बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। इसके अलावा जो है आपके पास नेप्रोक्सन सोडियम जो है वो जो जेनेरिक नेम है वो डिफरेंट नेम से अवेलेबल है, जिसमें फ्लैक्सिन, सिनफ्लैक्स, ये जो ड्रग्स हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। ये 550 मिलीग्राम एंड 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसका एडिशनल एडवांटेज ये है कि 2 टाइम डोजेज जो है वो आलमोस्ट आपको होल डे पेन की कवरेज दे देती है। इसके अलावा जो आपके पास एनसेड्स हैं उनमें आपके पास आइबोप्रूफन, कीटोप्रूफन एंड डेक्सीबोप्रूफन वगैरह हैं। ये अक्सर बच्चों में शरबत की फॉर्म में पेन के साथ साथ फीवर की मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। बड़ों में भी ये ब्रूफन जो है वो अक्सर यूज़ होती है। सिंपल ब्रूफेन के नेम से भी अवेलेबल है और फॉर्म्स भी हैं, लेकिन लेस यूजेज है इसका। उसके अलावा इसी की कैटेगरी के जो मैंने नेम मेंशन कर दिए हैं, कीटोप्रूफन, डेक्सीबोप्रूफन, ये भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है एक ओनली आईवी NSAID ड्रग है जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं नेम की वजह से माइल्ड ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के साथ, एंड दैट इज़ कीटोरुलैक। कीटोरुलैक जो है वो टोराडोल के नेम से अवेलेबल है मार्केट में, और जो माइल्ड ओपियाइड ड्रग जिसे अक्सर टोनोफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है वो जो है ट्रेमोल के नेम से इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। तो अक्सर बिगिनर डॉक्टर्स जो है वो ट्रेमोल और टोराडोल को जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। And we have indomethacin as well in this group, and the one reason for using indomethacin is it has a little bit more anti-inflammatory action. So अक्सर जो आपके आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें जहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी एक रीज़न होती है टू कंट्रोल एंड मैनेज पेन, तो वहाँ पर अक्सर कैप्सूल इंडोमेथासिन का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो कोक्स-2 सेलेक्टिव कैटेगरी की ड्रग्स हैं उनमें आपके पास सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब वगैरह के नेम से कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं, जो कि इसके अलावा मेलॉक्सिकैम एंड पायरोक्सिकैम भी जो हैं वो ड्रग्स इसी कैटेगरी की हैं। I already have told you that these drugs are a little bit expensive than these commonly available drugs, but they have their advantages that they do not lead to peptic ulcer disease. This does not mean कि इनसे बिल्कुल 100% peptic ulcer disease नहीं होती, but थोड़े से कम चांसेस होते हैं। और जिस नेम से ये मार्केट में अवेलेबल हैं सेलबैक्स के नेम से, एंड we have some combination drugs available as well.
अभी मॉडर्न एरा के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जो जिसमें बहुत ही कॉमनली यूज जो कॉम्बिनेशन अक्सर न्यूब्रल फोर्ट के नाम से एक ड्रग जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमनली एडवाइज्ड होती है. What is inside this is basically centrally acting NSAID known as or phenidrine citrate along with paracetamol. तो ये ड्रग जो है अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सम पेशेंट्स जो है वो अच्छा इफेक्ट देती है, लेकिन कोई इसकी सुपीरियरिटी एज पर बुक्स कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है. इसके अलावा कुछ जो कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं वो आपके पास माइल्ड ओपियाइड्स के और साथ पैरासीटामोल के भी अवेलेबल हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो टोनोफ्लेक्स पी के नेम से है. सिंपल टोनोफ्लेक्स इज ऑन फॉर ओनली ट्रेमाडोल एंड इफ़ यू एडवाइज टोनोफ्लेक्स पी तो ये फिर आपके पास ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल जो है वो उस का कम्बिनेशन आ जाएगा. अच्छा, तो एक और कम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें बेसिकली एक गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट जो है वो ऐड किया जाता है पैरासीटामोल के साथ, और उसका जो पैरासीटामोल के साथ में फिप्रेस्टोन ऐड की जाती है जो कि बेसिकली एक गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट है. तो कुछ ड्रग्स जो इस नेम से अवेलेबल हैं उसमें ERVIN एंड आर्थ्रोटेक के नेम से ये ड्रग्स अवेलेबल हैं. रिमेंबर के डू नॉट एडवाइज देम इन प्रेगनेंसी, इट कैन लीड टू अबॉर्शन. तो ये ड्रग्स जो हैं ये भी लिटिल बिट एक्सपेंसिव हैं, बट ये गैस्ट्रो प्रोटेक्शन देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्रोनिकली वो जो क्रोनिक रूमेटोलॉजिकल कंडीशन जैसे SLE एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस और वो पेन जो कि जॉइंट पेन्स हैं उसमें अक्सर पेशेंट को लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है एनसेड ड्रग्स का. वहाँ पर ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये लिटिल बिट जो है लेस गैस्ट्रिक अल्सरेशन और पेप्टिक अल्सरेशन काज करता है. उसके अलावा जो है वो वहीं पर आपके पास कोक टू सेलेक्टिव ड्रग्स थोड़ी सी उस सिनेरियो में सुपीरियर हो जाती हैं. और दो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन कंसिडर एडिंग राइजिक और बेसिकली a proton pump inhibitor PPI in combination with NSAID drugs when you know the reason for advising these drug is going to be a long term. लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ड्रग जो कि बड़ी ही कॉमनली यूज होती है दैट इज़ निम्स टैबलेट. नेम्स ऑलमोस्ट हर बंदे को इसका नाम पता है. लोग बहुत जिसे कहते हैं ना एतमाद के साथ इसे यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जी डॉक्टर्स जो हैं ना वो कहते हैं इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं और बड़ी सेफ़ है, तो इसको आराम से यूज़ किया जा सकता है. बट रिमेंबर के रिसेंटली कुछ डाटा जो है उसमें इसके कुछ कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद इस निम्सोलाइड जो एजेंट है इसका इस्तेमाल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है इतना फ्रीक्वेंटली. ये नहीं कि इसे आप एक दो ड्रग की डोज भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसको ये कहना कि ये 100% सेफ़ है ये भी गलत है. While talking about the different agents and drugs for the management of pain, especially NSAID, always remember whenever you are going to advise Ticloran in the form of injection, make sure that it is always being used as IM injection. Do not inject IV. It can lead to dysrhythmias and can lead to worse outcomes. Theometacin is also an IV NSAID that is often being used in the form of IV infusion. So मैंने कहा कि कोई NSAID बचे ना जो आपके इल्म में ना हो. एंड नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास एमरजेंसी में आया, उसने आपको अपना मसला बताया, आपने उसे एक इंजेक्शन डिक्लोरान लगवा दिया. आपको पेशेंट मरीज़ ने कहा जी मुझे कोई असर नहीं हो रहा. आपने कहा जी कुछ देर वेट करें. आपने कोई 15 to 20 मिनट्स वेट कराया, पेशेंट की पेन मैनेज नहीं हुई. नाउ व्हाट यू विल डू, you can now use IV NSAID of another category that is Toradol, or you can choose Tramol, mean mild opioid agent, or you can also go for potent or moderate Kinsmaxolone as well. And you also have to think about the other possible causes of the pain. For example हो सकता है उसके पेट की दर्द
जो है वो किसी और वजह से हो रही हो, जिसमें आपके पास जीआई स्पैज़म्स हों, तो वहाँ पर फिर आपको जो अदर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स हैं, जिसमें नोस्पा यानी ड्रोटावरीन HCl है, वो यूज़ करनी पड़ेगी। एज वी ऑलरेडी हैव टॉक दैट अदर देन मस्कुलोस्केलेटल रीजन पेन, there are other reason for pain as well. So whenever managing pain, if you think so the reason for पेन इज़ न्यूरोपैथिक पेन, जो कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट में होती है, तो वहाँ पर आपके पास प्री गैबलिन एंड गैबलिन और जो हैं इन ड्रग्स का भी रोल है। इसके अलावा जो है इस न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोपैथिक पेन्स में आपके पास एंटी एपिलेप्टिक्स भी जो हैं उनका भी रोल है, जिसमें आपके पास जो हैं सोडियम वैल्प्रोएट को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो अदर रीजंस फॉर पेन है, जिसमें स्मूथ मसल के स्पैज़म्स की पेन है, उसमें आपके पास जो एंटी कोलिनर्जिक्स और एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स भी रोल प्ले करती हैं, जिसमें कॉमनली यूज ड्रग्स नोस्पा यानी ड्रोटावरीन HCl एंड अदर ड्रग्स जो हैं आपके पास पोलोफैक, जिसमें मेबिवरीन है। ये ड्रग्स भी आपके पास जो हैं वो एज ए एंटीकोलिनर्जिक यूज़ होती हैं। उसके अलावा जो दूसरे जेंट्स हैं, जिसमें स्पेसरिड एंड स्पेसकोन का नाम भी अक्सर आपको सुनने में मिलता है, ये ड्रग्स भी इसी कैटेगरी की पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। कुछ जो बाकी पेन हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल पेन है, उनमें वहाँ पर आपकी जो साइकोलॉजिकल पेन्स में कुछ ना कुछ आपका जो बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं, जिसमें डोर्मिकम डाइज़ेपैम भी रोल प्ले करते हैं। और वहीं पर आपके पास जो ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और उसके अलावा जो SSRIs वगैरह भी लॉन्ग रन में इस तरह की पेन्स को कम करने में रोल प्ले करेंगे। So every pain is not a deficiency of dicloran or tremolmaxolone or quinzmaxolone. Always work for the underlying cause and try to make sure what actually is causing the pain and then manage it accordingly. I think this will help you throughout your life. So let's summarize quickly. पेन आपके पास मरीज़ के आने की अक्सर औकात 60 से 80% मरीज़ों में वजह होती है, जो सर की दर्द, पाँव की दर्द, पेट की दर्द, कमर की दर्द या कोई भी दर्द हो सकती है। आपने अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द पेन जो है पेशेंट को मैनेज करना है। तो पेन अगर सीवियर पेन है तो आप IV मेडिकेशन चूज़ करें या प्रेफरेबली यूज़ करें, और अगर आपको लगता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो आप उन्हें ओरल एजेंट्स के ऊपर भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। एंड साथ साथ आपने अंडरलाइन काज को भी हमेशा एड्रेस करने की कोशिश करनी है। अब जहाँ बात आई कि जहाँ आपको पता है क्रोनिकली यूज़ करना है आपने, और वहाँ पर आपने हमेशा जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और NSAIDs और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को भी ख़ास तौर पर कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। और WHO पेन लेटर अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली आपने ड्रग्स का कम्बिनेशन या ड्रग्स चूज़ कर लेनी है। और थोड़ी थोड़ी जो डिफरेंसेस हैं NSAIDs की सिलेक्शन में, वो आपने ऑलरेडी जान ली हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।